Students, so in previous class we have already discussed about the different laws of motion, that is Newton's first law, Newton's second law and Newton's third law. Okay, as we have already discussed, Newton's first law is called law of inertia. Newton's second law, that is the application of force and change of momentum, and Newton's third law is about your action and reaction. जेटा मैं कहचे for any action there is an equal and opposite reaction. प्रत्येक किसी action रो किसी reaction हमें पाउचे ना नहीं देखा तापर मोर डिटेल्स रे डिस्कशन करिबा तो आम न्यूटन सेकेंड लॉ जो बाहर करुचे न्यूटन सेकेंड लॉ थर्ड लॉ ऊपर किसी एग्जांपल्स देके आउ टिके डिटेल्स रे ताको जे बुझिबा जो आम न्यूटन सेकेंड लॉ कहूचे आम न्यूटन सेकेंड लॉ कहले ना फोर्स is equal to rate of change of momentum, force equal to rate of change of momentum with time. Momentum, that is P equal to mass into velocity. Momentum of a body, that is the quantity of motion, that equals to the product of mass into velocity of the body. Okay, and when we take the proof of this relation, we find that equals to mass into acceleration. Force equal to mass into acceleration. Okay, and when we discuss force of a body, force of a body is the product of mass of the body and the acceleration that produced by the force. से फोर्स पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होची तार प्रोडक्ट सहित समान आसुची कार वैल्यू ना फोर्स रो वैल्यू. सो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, एटा हम पाइले न्यूटन सेकेंड लॉ रे, जोटी हम न्यूटन सेकेंड लॉ रे जो फोर्स रा पाइले ताको हम दुईटा यूनिट रे डिवाइड करले, गोटे है एब्सोल्यूट यूनिट आउटे है ग्रेविटेशनल यूनिट. एब्सोल्यूट यूनिट रे ता वैल्यू हम पाइले केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, ग्रेविटेशनल यूनिट रे तुम वैल्यू पाइल कौन ना इधर आम केजी वेट रे रिप्रेजेंट करि परिबा. जे केजी वेट को आम जो कन्वर्ट करूचे न्यूटन को तल से पाइले 1 केजी वेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन. ओके, जदि बॉडी मास अच्छी मोर 1 केजी, जदि बॉडी मास मु 1 ग्राम नहीं जीवी ताले से केस रे मोर वैल्यू आसिला 1 केजी वेट इक्वल टू 980 डाइन. ओके, 980 डाइन. ए टाइप रे प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करथिले डिफरेंट टर्म्स ऊपर. ओके, आज टे आउ किसी डिटेल्स रे डिस्कशन करवा न्यूटन सेकेंड लॉ थर्ड लॉ ऊपर. ओके, नेक्स्ट तार एप्लिकेशन को आम मूवमेंट करवा. सो जो न्यूटन सेकेंड लॉ देखो फर्स्ट मन कर न्यूटन सेकेंड लॉ रे गोटे कॉन्सिक्वेंस ऊपर हम डिस्कशन करवा जे व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, सो आई मे राइट द हेडिंग एज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ consequences of second law of motion. Okay, so when we consider the second law of motion, we find second law of motion gives that the force applied on a body is equal to the rate of change of momentum with time, and also we find the force is equal to the product of mass of the body and the acceleration that produced by the force. Okay, so first consequence of the second law of motion is about the concept of inertia mass. Okay, the first consequence we may take, that is the concept of inertial mass. Okay, concept of inertial mass. Okay, so when we consider the concept of inertial mass in case of Newton's second law of motion, we find the force applied on a body, the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced. Okay, force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced on the body. Okay, so that means we can say F proportional to A, or simply we write, if we remove the proportionality constant, F equal to some constant A. ओके, जो कांस्टेंट को नेली से कांस्टेंट को केते लिखिली ना m. ओके,
ताले जदि मोर लार्ज एक्सेलरेशन अच्छी गोटे बॉडी ऊपर जदि मोर लार्ज एक्सेलरेशन अच्छी सो इट मीन्स देयर इज आल्सो ए लार्ज अप्लाइड फोर्स इफ ए बॉडी एक्सेलरेट विथ ए स्मॉल एक्सेलरेशन इट मीन्स देयर इज ए स्मॉल एक्सेलरेटेड फोर्स ओके सो फोर्स प्रोपोर्शनल विथ द acceleration so F equal to some constant m into a so here m is the proportionality constant okay or simply we can say that is the mass of the body okay that is the mass of the body and that mass is equal to proportionality constant or mass which is equal to inertial mass फिर आम क्या सहित कनसीडर करछे ना इनर्शिया मास सहित कनसीडर करछे which is equal to inertial mass of the body बुझेला inertial mass of the body okay inertial mass of the body ताले force proportion with acceleration so F equal to mass into acceleration that mass is proportionality constant or we can say that is the inertial mass of the body okay जेमते हम गोटे टॉय कार ऊपर फोर्स अप्लाई कले कौन आसूची ना से मूवमेंट करूची ओके तार मूवमेंट कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना ता फोर्स ऊपर तुम जते अधिक स्पीड रे मूवमेंट करिवो जते अधिक स्पीड फोर्स अप्लाई करिवो तार स्पीड सेते अधिक आसीबो बा चेंज ऑफ वेलोसिटी सेते अधिक आसीबो जते तुम कम फोर्स अप्लाई करछो तान ता चेंज ऑफ वेलोसिटी सेते कम आसीबो ओके सो F इक्वल टू ma सो m टा को हम कहूचे कौन ना इनर्शियल मास मन कर एबे गोटे केस नेबी दीटा डिफरेंट बॉडी ओके एबे हम कंसीडर करिया गोटे केस जो केस रे के हम कोन करबा ना दीटा डिफरेंट बॉडी विथ डिफरेंट मासेस कंसीडर करबा मन कर गोटे बॉडी नेली a तार मास होची m1 आ गोटे बॉडी नेबी b तार मास हला मन कर m2 ओके ये दीटा बॉडी रो मास डिफरेंट अच्छी गोटे रहा मास m1 आ गोटे मास है m2 ओके कोटा ग्रेटर कोटा स्मॉलर मुझे पर कंसीडर करी जे m1 ग्रेटर कि m2 ग्रेटर कि m2 ग्रेटर कि m1 ग्रेटर ओके पर कंसीडर करवा मन कर दीटा जाक बॉडी ऊपर आम कौन करवा ना गोटे कांस्टेंट अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करवा कांस्टेंट अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करवा ए बॉडी ऊपर मन कर जति फोर्स देली ताले बी बॉडी ऊपर भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स देबी सो F इज द फोर्स लेट F इज द फोर्स applied on the body A and B ताले देखो ए और बी ऊपर मैं कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करिचे जदि ए और बी ऊपर मैं कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करिचे सपोज एट कंसीडर करे a1 इज द एक्सेलरेशन ताले फोर्स अप्लाई करिचे त माने कोन आसीबो फोर्स अप्लाई कला माने एक्सेलरेशन आसीबो सपोज a1 इज द एक्सेलरेशन a1 is the acceleration of mass m1 ओके m1 बॉडी रो एक्सेलरेशन केते आसिला a1 अस्यूम करनिय वैल्यूटा को सपोज a2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m2 a2 टा को नहीं गली एक्सेलरेशन ऑफ द मास m2 सो एज पर दिस रिलेशन कौन लिखि पारिबी ए और बी ऊपर जेतु कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हेची तले हम कहू फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जदि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तले बॉडी ए पई केते फोर्स अप्लाई हेची ना एफ फोर्स अप्लाई हेची जदि बॉडी ए रे एफ फोर्स अप्लाई हेची तले तारे हम रिलेशन लिखि पारिबा फॉर बॉडी ए पाई मु लिखि पारिबी केते ना फोर्स F इक्वल टू ए रो मास केते अछि ना m1 एक्सेलरेशन केते प्रोड्यूस हैला a1 एक्सेलरेशन केते आसिला a1 सो F इक्वल टू m1 a1 सो दैट इंप्लाइज टू केते एक्सेलरेशन बाहर करबा सो a इक्वल टू केते पाइलो ना F बाय m1 a इक्वल टू F बाय m1 अंडरस्टैंड एबे सेकंड केस नबा जो वैल्यूटा मन कर एटा नै गेली इक्वेशन 1 बुझेला बॉडी बी पाई आसीबा एबे फॉर बॉडी बी केस में कौन लिखि पारिबी ना F इक्वल टू देख बॉडी बी रो मास थिला m2 एक्सेलरेशन केते पाइलो ना a2
एक्सेलरेशन केते पाइले a2 तमने एठी लिखि परिबी वैल्यूटा एक्सेलरेशन केते पाइलो a2 इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय m2 इक्वेशन 2 ओके एबे कोन करबी ना इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 सहित डिवाइड कर देबे ओके डिवाइड कर दवा डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 1 2 को तुम डिवाइड कर दियो by divide equation 1 by equation 2 okay कौन पाइबा वैल्यू को we have a1 divided by a2 their corresponding acceleration a1 divided by a2 लिखवा केते ना f by m1 divided by f by m2 जे केते आसी जीव रे पिले m2 divided by m1 m2 divided by m1 ताले हमें रिलेशन टा इटी पाइले a1 divided by a2 is equal to m2 divided by केते ना m1 ए टाइप रे रिलेशन हमें पाइले बोथ a और b बॉडी पाई ओके एठी जदि हमें एबे अस्यूम करबा देखो केसटा हमें कोन पाइले माने कर एटा को नै गले इक्वेशन 3 ओके एबे इमेजिन करो जदि आम बॉडी ए और बी रो मास कॉन्सेप्ट को आसवा सपोज आम कंसीडर करवा बॉडी जो ए अच्छी ए रो मास को मन कर ग्रेटर नहीं जावा इफ m1 ग्रेटर देन m2 ओके जदि मु m1 ग्रेटर देन m2 नहीं जीबी तामाने मास ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी बी okay mass of body A is greater than mass of body B then what happens na m2 by m1 less than 1 आसी गला डिवाइड कर दियो एटा नै कि m2 by m1 जदि मोर लेस देन 1 आसुची एटा में केते पाइचे ना a1 by a2 इक्वल टू m2 by m1 m2 by m1 सो m2 by m1 जगह में लिखि परिबे केते ना a1 डिवाइडेड by a2 लेस देन 1 ताले इक्वल टू एटा मल्टीप्लाई कर दिया आर पटे तने a1 लेस देन a2 a1 लेस देन a2 या माने कौन लेस देन a2 तमने कहार एक्सेलरेशन ग्रेटर आसिला को बॉडी रो एक्सेलरेशन तमरे ग्रेटर आसुची ना सेकंड बॉडी रो एक्सेलरेशन ग्रेटर आसिला कहा ठारू ना फर्स्ट बॉडी ठारू तले इथे हम कहि परिबा एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 is greater than mass m1 ताले m1 रो एक्सेलरेशन थारू कहार एक्सेलरेशन ग्रेटर आसिला ना m2 रो एक्सेलरेशन ग्रेटर आसिला कंडीशन कोन नइथिले ना मास ऑफ बॉडी A इज ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी B रिजल्ट कोन पाइले ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी B इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी A ओके ताले हम कहि पारिया जदि उडे लाइटर बॉडी अछि उडे स्मॉल मास बॉडी अछि ताले से कोन होबो ना ग्रेटर स्पीड रे एक्सेलरेट होबो कांस्टेंट फोर्स पाई जदि गोटे स्मॉल मास बॉडी अच्छी बा लाइटर मास बॉडी अच्छी इट विल प्रोड्यूस ए ग्रेटर एक्सेलरेशन देन दैट ऑफ ए हेवी मास बॉडी ओके सो वी कैन कंक्लूड हियर फॉर ए कांस्टेंट फोर्स ओके ताले एटा कंक्लूजन कोन लिखि परिबा ना लाइटर बॉडी विल प्रोड्यूस greater acceleration than that of heavier body for the application of a constant force okay so we can say conclusion likhiba so we can conclude that okay lighter body can produce greater acceleration than that of a heavier body for
a constant force for a constant applied force for a constant applied force जदि आम फोर्स वैल्यू सेम रखिकी दुटा बॉडी उपर गोटे लाइट मास बॉडी आ गोटे हेवी मास बॉडी उपर फोर्स पकेबा ताले कहार फोर्स अधिक आसीबो सॉरी कहार एक्सेलरेशन अधिक आसीबो ना लाइट मास बॉडी रो एक्सेलरेशन अधिक आसीबो बुझीला ना बुझीलानी सो दैट इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ गोटे कॉन्सिक्वेंस नबा कोन ना जदि हम गोटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे बॉडी को मूव करेबा तल से केस रे फोर्स केते आसीबो सो सेकंड कॉन्सिक्वेंस लिखि परिबा बाबू जी फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस समस्त भल से बुझी पारिथिबो एबे देखियो सेकंड कॉन्सिक्वेंस सेज no force act on the body moving with uniform velocity no force second consequence no force act on a body no force act on a body moving with uniform velocity moving with uniform velocity मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ताले जदि गोटे ऑब्जेक्ट को आम यूनिफॉर्म वेलोसिटी केतबेले कहितली जदि मोर फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन आसीबो जदि गोटे कॉन्स्ट बॉडी सेम टाइम रे सेम डिस्टेंस कवर करूची से केस रे आम कहि परिबा यूनिफॉर्म वेलोसिटी समान समय रे समान दूरता जदि अतिक्रम करूची ताले आम कहि परिबा भी गोटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे बॉडी मूवमेंट करूची जदि आम गोटे बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस कही जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी केतबेले आसीबो ना जदि तार एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 0 ओके ताले हम कहि पारे गोटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस रे बॉडी रो एक्सेलरेशन केते ना 0 ओके सो हम सेकंड लॉ रे पाइले कोन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी फाइंड F इक्वल टू ma F इक्वल टू केते आसिला ma आसिला जदि हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी गोटे बॉडी को मूवमेंट करेबा तल एक्सेलरेशन केते ना 0 ओके इफ ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन केते आसीबो ना 0 देन एक्सेलरेशन मोर केते आसिला ओके एक्सेलरेशन से बॉडी ऊपर केते आसीबो ना 0 आसीबो कोन मेजर करिया पई चाहूचे ना फोर्स मेजर करिया पई चाहूचे से बॉडी ऊपर ओके जदि मोर एक्सेलरेशन 0 आसुची ताले फोर्स केते ही जिवो ना सो F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जदि एक्सेलरेशन 0 अछि ताले फोर्स भी केते आसिला ना 0 ता माने कौन ना जदि गोटे फोर्स यूनिफॉर्म जदि गोटे बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूवमेंट करुच्ची तापर नेट फोर्स केते 0 ओके सो इट इनक्लूड्स दैट इज नो फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी moving with uniform velocity बुझिएला सो दैट इज द सेकंड consequence of second law of motion ओके एबे देखिबा कोन ना थर्ड लॉ ऊपर किसी आम डिस्कसन करवा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऊपर जेटा आम कहे फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जेटा आम कहे एक्शन रिएक्शन फोर्स ओके सो बुझापी भी किसी एक्स्ट्रा एग्जांपल भी नेबी से एग्जांपल रू ट्राई कर बुझापी थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओके न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओके जेटा आम कहे फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ना नहीं जेटा आम कहे एक्शन रिएक्शन फोर्स फॉर एवरी एक्शन there is
an equal and opposite reaction. There is an equal and opposite reaction. जमती आम कहले गोटे बॉडी को जिते आम मूवमेंट कराऊे बॉडी को गोटे जो वाल को आम हिट कराऊे तेल वाल उपर जब आम एक्शन दौचे हाथ उपर कौन आसूँ रिएक्शन आसूँ. ओके सो गोटे एग्जांपल आम नवा ताको अंडरस्टैंड करने. सो अंडरस्टैंडिंग कौन आसो ना आम कहे एक्शन आउ रिएक्शन जो कंसीडर करुचे ऑलवेज you have to remember some important points. ओके जब आम एक्शन रिएक्शन कॉन्सेप्ट को आसूचे किसी इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुड़ाक मन रखा पड़ो. जो आम कहे इंपोर्टेंट पॉइंट में फास्ट केस नहीं पारिबा ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट. एक्शन रिएक्शन केबे आम सिंगल आइसोलेटेड फोर्स को कंसीडर करि परिबा नाही. ओके किसी इंपोर्टेंट पॉइंट ये लिखि दूची सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स. Some important points about third law. जोटा तुम मटेरियल प्रोवाइड ना. ओके फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन ना थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कहूचे कौन ना इक्वल अपोजिट एक्शन फोर्स गोटे रिएक्शन फोर्स आसूची. एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स आसने ये कौन आसो ना दुईटा फोर्स आसो. सो फर्स्ट थिंग वी कैन से ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन नॉट taken into consideration. ओके ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन. केबे सिंगल फोर्स रे हमें मेजर करि परिबानी थर्ड लॉ. सिंगल फोर्स ता माने कोन बुझछ ना एक्शन फोर्स देले रिएक्शन फोर्स आसीबो. एक्शन फोर्स देले रिएक्शन फोर्स आसीबो. एग्जांपल नेले आउ टिके बेटर अंडरस्टैंडिंग हे परिबो. सेकंड पॉइंट हम कोन कहूचे ना जते हम एक्शन रिएक्शन फोर्स कंसीडर करूचे एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. ओके एक्शन and reaction force always exist in pair form. So force in nature okay always occurs in pair. Okay action reaction force always केमती exist करिवो. Forces in nature always, that is the action reaction forces always exist in pairs. ऑलवेज केमिति फॉर्मेट रे एग्जिस्ट करिवो ना पेयर फॉर्मेट रे दीटा फोर्स रहिबो. एक्शन अछि माने रिएक्शन आसीबो. ओके थर्ड पॉइंट ता कहबो सर हमें एक्शन रिएक्शन दबा किंतु जदि गोटे बॉडी ऊपर देले देखो मु कहि इक्विलिब्रियम कंडीशन केस रे आमे भी सेटे में दीटा फोर्स दउचे अपोजिट डायरेक्शन रे किंतु एक्शन रिएक्शन फोर्स केस रे जदि हम गोटे बॉडी ऊपर दबा ताले सेटे इक्विलिब्रियम कंडीशन आसी जिवो. बॉडीटा ऊपर जदि हम रिजल्टेंट फोर्स गोटे बॉडी ऊपर एक्ट करबा इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन रे ताले से बॉडीटा रेस्ट हो जिवो. दैट इज नॉट एक्शन रिएक्शन फोर्स. एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी. ओके एक्शन रिएक्शन फोर्स दीटा डिफरेंट बॉडी ऊपर एक्ट हवा दरकार. मोर एग्जांपल जब मुझे कांथ को हिट करी जो कांथ को आम हिट करुचे कांथ उपर मुझे एक्शन फोर्स देली सेम अमाउंट रो फोर्स कांथ मो हैंड ऊपर अप्लाई कला. देख आम एक्शन देले वाल ऊपर रिएक्शन आसला कौटी ना हैंड ऊपर. ओके दैट इज we can say the action and reaction force must be act on different body. दीटा different body उपरे act होबो दरकार. से same body उपरे केबे action आसीबो नाही. ओके so we can write action and reaction forces never act on the same body. दीटा डिफरेंट बॉडी ऊपर एक्ट हवा दरकार. एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी. सेकेंड केस नबा जदि आम एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम बॉडी ऊपर आम अप्लाई कले सेम बॉडी ऊपर अप्लाई कले तामान सेटा आसी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन जोटा कि आम एठी कंसीडर करबा नाही. ओके एंड
एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन द लाइन जॉइनिंग देख गोटे सेम लाइन जो मैं एपटे एक्शन दूची तेने एपटे मोर रिएक्शन आसीबो सेम लाइन जॉइनिंग रे आसीबा दरकार गोटे लाइन ऊपर एक्शन होबा दरकार एक्शन रिएक्शन ऑलवेज सेम लाइन ऑफ एक्शन होबा दरकार किंतु से माने केमिति ना अपोजिट डायरेक्शन ले एक्ट करिवे सो एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज नंबर 4 एक्शन and reaction forces acts along the line joining action reaction forces act along the line joining the center of the two bodies center of two bodies understand okay and always Newton's third law of motion when we take consideration so these are the few points that you have to remember we cannot take a single force into count always force exists in pair okay and action reaction never act on the same body okay third things hame koi fourth things koi pariba they always act the center of line joining the two bodies so dita jo body asuchi tar center of line joining upare action asibo so these are the few important points that you have to remember about the Newton's third law of motion एबे देखियो कि एग्जांपल्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओके कॉमन एग्जांपल स्टार्ट करबा आमे गोटे केस कहले जदि आमे कांथ को हिट करूचे ताहले सेटा आमे एक्शन रिएक्शन फोर्स आसे गोटे पिला आमे आ गोटे कॉमन एग्जांपल जोटा ये करि परिबा सेटा आमे कहूचे जेतले वॉक करूचे जेतले आमे वॉक करूचे चलबा पई सेठी आमे एक्शन रिएक्शन फोर्स दउचे तुम केते बेले चली पारिबो जदि तुम फोर्स पकेबो काहा ऊपर ना जो सॉइल बा माटी ऊपर जो चालुछ तुम कि फ्लोर ऊपर जो चलीच से फ्लोर ऊपर जदि बैकवर्ड डायरेक्शन ले फोर्स दबो ताहले तुम फॉरवर्ड मूवमेंट करि पारिबो चलबा पई ओके से तुम टिके ये करि पारो जे चेक करिवार प्रैक्टिकली देखो चलबा पई हेले हमको ऑलवेज बैकवर्ड डायरेक्शन ले गोटे फोर्स दबा को पड़े फ्लोर ऊपर जब आम बैकवर्ड डायरेक्शन ले फोर्स दौचे ताहले आम जाइए फॉरवर्ड डायरेक्शन ले मूवमेंट करि पारिबा ओके पछे पछे के आसीबा बा आगे की जबा मन पछू जावाक हेले तुमको कौन करिया को पड़िबो ना तुमको भी सेमती गोटे फोर्स दबा को पड़िबो जहार डायरेक्शन अछि फॉरवर्ड एक्शन फॉरवर्ड देले रिएक्शन तुमर बैकवर्ड आसीबो ओके जब तुम एक्शन बैकवर्ड दौच ताहले रिएक्शन तुमर फॉरवर्ड आसीबो ओके सो फर्स्ट आम जिते आम वॉक करूचे वॉक करबा पई सेटा में भी एक्शन रिएक्शन लो फोर्स को यूज करूचे थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओके फर्स्ट एग्जांपल आम नवा जोटा आम कहूचे गोटे एग्जांपल ये फिगर ये बुझेबा मानकर फ्लोर ऊपर एटा हमर फ्लोर ओके फ्लोर ऊपर जो आम वॉक करूचे ओके सपोज ये तुम फुट पोजिशन ओके मनकर ये पर्सन गोटे फुट पोजिशन को आम कनसीडर करुचे ओके ताले ये वॉक करिया को हेले फर्स्ट हमको कौन करिया को पड़े ना जो फ्लोर अच्छी से फ्लोर रु आम बैकवर्ड डायरेक्शन ले गोटे एक्शन फोर्स दबा को पड़े जो नौ एफ एफ टा मोर कौन एक्शन फोर्स ओके जे तुम एफ टा एक्शन फोर्स अच्छी तुम जो छिड़ा होच जिते छिड़ा होच से केस आम कौन करुचे ना छिड़ा हाँपाई ताले ये आम कौन देले ना वेट तुम स्टैंडिंग हो जाओ ताल तुम तुम वेट जो अच्छी से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट टा केते आसिला तुमर mg जोटा कि फुट ऊपर पड़ुची तार डायरेक्शन कौन रहिला वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन w मानकर वेट मोर आसिला केते w ओके जेतेबेले छिड़ा होची तमे छिड़ा हिची माने वेट जदि डाउनवर्ड रहिला मोर रिएक्शन फोर्स कोन आसीबो से सरफेस को परपेंडिकुलर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन जदि हमर फ्लोर अच्छी तार रिएक्शन फोर्स आसिला कौन ना वर्टिकली अपवर्ड आर हला कौन ना रिएक्शन फोर्स ओके ना नहीं
सेकेंड देख ये आम चलवाई कौन देले ना एक्शन फोर्स देले ए डायरेक्शन ले बैकवर्ड डायरेक्शन से फ्लोर को आम किसी एक्शन फोर्स दौचे सो एफ टा कौन ना दैट इज द एक्शन फोर्स ओके जब एक्शन फोर्स आम दौचे तमें मोर कौन आसो ना रिएक्शन फोर्स आसो अपोजिट डायरेक्शन रे रिएक्शन फोर्स आसो अपोजिट डायरेक्शन और सेम लाइन ऑफ एक्शन आसो जब लाइन रो जो एक्शन अच्छी से एक्शन रो सेम लाइन रे कि अपोजिट डायरेक्शन रे ओके अपोजिट डायरेक्शन रहिबो जदि अपोजिट डायरेक्शन रहिबो एटा हम टिके परे नबा आर कंडीशन देखिबा एटा कोन अछि परे आसीबा से रिएक्शन फोर्स केस को एटा हम रिएक्शन फोर्स देले एटा हला हमर रिएक्शन फोर्स ओके तल से बॉडी ऊपर जो रिएक्शन फोर्स आसुची रिएक्शन फोर्स हला केते आर दैट इज द रिएक्शन फोर्स भल से बुझिया पे चेष्टा कर जो तुम फुट रे तुम कौन करुच ना फ्लोर ऊपर मूवमेंट करुच दैट इज फ्लोर ओके ताले ये कौन कली ना फॉरवर्ड डायरेक्शन ले चलवा को हेले मते फोर्स दिया गला बैकवर्ड डायरेक्शन ले एटा हला मोर फोर्स जो फ्लोर ऊपर अप्लाई करछि ताले तो अपोजिट डायरेक्शन ले मोर रिएक्शन फोर्स आसिला आर ओके बट चलवा पई हम कौन दरकार ना फॉरवर्ड मोमेंटम दरकार चलवा पई कौन दरकार ना फॉरवर्ड मोमेंटम दरकार अंडा सुती भाई ना कहीं कौन कहउछन ओके फॉरवर्ड मोमेंटम दरकार फॉरवर्ड मोमेंटम तले जो रिएक्शन फोर्स अच्छी बर्तमान से रिएक्शन फोर्स को दुईटा पार्ट रे डिवाइड कर दवा रिएक्शन फोर्स को कौन कली ना जो आर अच्छी आर टा कौन थिला मोर ना एफ थिला तमर हला एक्शन फोर्स ऑन द फ्लोर एक्शन फोर्स ऑन द फ्लोर ओके आर टा कौन आसिला ना रिएक्शन फोर्स आर मोर कौन आसिला ना रिएक्शन फोर्स जदि आर अच्छी मोर रिएक्शन फोर्स ओके रिएक्शन फोर्स ऑन द फुट कहाँ पर देख रिएक्शन फोर्स आसिला फुट ऑफ द पर्सन से पर्सन रो फुट ऊपर आसिला रिएक्शन फोर्स ओके एबे कौन करबा ना रिएक्शन फोर्स को दुईटा पार्ट रे डिवाइड करबा आर इज रिजल्ट माने डिवाइड करवा रिजल्व इनटू टू पार्ट्स बात हमें कह जाए कंपोनेंट्स दुईटा कंपोनेंट रे कौन डिवाइड कर देली ना ताको गोटे हॉरिजॉन्टल एच डायरेक्शन ले दे देली आ गोटे वर्टिकल डायरेक्शन एटा कह जाए हॉरिजॉन्टल एटा ले तमर हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डायरेक्शन एटा कह जाए वर्टिकल एटा हला तमर हॉरिजॉन्टल एटा हला तमर वर्टिकल ओके तन त दुईटा पार्ट डिवाइड कर देले गोटे हला हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गोटे हला वर्टिकल फोर्स बोल जा ऑब्जर्व कर आर को जतले डिवाइड कर देले दुईटा कंपोनेंट रे गोटे हला कोन ना v इक्वल टू दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स ओके एच रा कौन आसिला ना एच इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स ओके बुझीगला से जो एक्शन रिएक्शन थिला से गोटे परपेंडिकुलर ड्र करिकी ताको कौन कर गोटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गोटे वर्टिकल कंपोनेंट रे डिवाइड कर देले कहार आर को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स दैट इज आर रिएक्शन फोर्स रे दुईटा कंपोनेंट रे हमें डिवाइड कर देले जतले दुईटा कंपोनेंट रे हमें डिवाइड करूचे तले एठी फिगर को टिके मार्क करो v जो वर्टिकल कंपोनेंट अछि सेटा मोर रहिला वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ले तार अपोजिट रे किया अछि w वेट तने एठी कोन हे जाउची ना v इज इक्वल टू w तले vटा कहा सहित समान ना w सहित समान आसीगला जदि vटा मोर w सहित समान आसी जाउची ओके त माने से कोन हे जबो ना इक्वल हे कि कैंसिल हे गला बोलता कोन हे गला इक्वल हे कि
ताले v टा मोर कोन हो जाउची हियर v इक्वल टू w v इक्वल टू w ओके जदि v इक्वल टू w आसुची ताले कोन हे गला ना v इक्वल्स टू w दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट balance with weight वर्टिकल कंपोनेंट क्या सहित बालांस हो गला ना वेट सहित बालांस हो गला जदि वर्टिकल कंपोनेंट वेट सहित बालांस होची तले रिजल्टेंट आ कोटा रहिला देखो देखो रिएक्शन फोर्स रो v टा w सहित इक्वल है कि कैंसल हो गला v इक्वल टू w आसी गला ता माने वर्टिकल कंपोनेंट तार वेट सहित समान हो गला देखो रिजल्टेंट किए रहिला h टा लेफ्ट रहि जाउची h रा में कहले कोन ना h इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स जेहेतु एस टा मैं कहूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस हो गला डब्ल्यू सहित तो लेफ्ट रहीगला किए ना एच रो डायरेक्शन देखो कुआडे अच्छी फॉरवर्ड डायरेक्शन ले जेहेतु एच रो डायरेक्शन अच्छी मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन रे तामाने से पोर्शन टा कुआडे मूव करिवो ना आगु को मूव करि चलला जेतेबेले से फोर्स फ्लोर ऊपर दउची तांतर बैकवर्ड कंपोनेंट जो अच्छी बा फोर्स बैकवर्ड फोर्स पे जो रिएक्शन फोर्स रो वर्टिकल कंपोनेंट वेट सहित बैलेंस हो गला सो द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हेल्प्स द पर्सन टू मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन सो कंक्लूजन ले कोन लिखि परिबा एटी कंक्लूजन ले लिखिबा हेंस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of R reaction force helps the person to move in forward direction ताले फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करिया पई ताको हेल्प कला के ना जो रिएक्शन फोर्स रो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टा बुझीला ना बुझीलानी आ गोटे एग्जांपल नबा तुम समस्ते स्विमिंग शिखिथिबो स्विमिंग टाको नहीं परिबा आ गोटे एग्जांपल पिला माने फिगर काटिकी समस्त भल से डिस्क्रिप्शन जोड़ा करूची डिस्क्रिप्शन लिखिबो जेतो एटा मटेरियल्स रे नाही तेनु से माने ता एग्जांपल पई आ गोटे एग्जांपल नेबी एग्जांपल 2 ओके एग्जांपल 2 रे हमें नहीं परिबा ए टाइप रो माने करे तुमको रिवर स्विमिंग सिखिबा स्विमिंग ना नहीं माने करे एटा हमर रिवर ओके रिवर तुम केबे स्विमिंग करिछ ना नहीं माने करे एटी जण स्विमर को हमें कंसीडर करिबा जो स्विमर टा कि स्विम करिया पई चाहूची पानी रे कोन करिवो ना स्विम करिया पई चाहूची जदि पानी रे स्विम करिया पई चाहूची माने करे एटा रिवर एटा पिलाटा को नहीं जाओ ओके सपोज हमें से स्विमर रो कौन मेजर करवा ना एक्शन रिएक्शन फोर्स को मेजर करवा जदि हमें एक्शन रिएक्शन फोर्स को मेजर करवा एक्शन रिएक्शन फोर्स को मेजर करवा ताले स्विमर स्विम कला बेले कौन करे ता बॉडी को ओके मनकर यहाँ जड़े स्विमर कौटी अच्छी ना पानी ऊपर अच्छी जो पानी रे से स्विम करे देखो से पानी को कौन करे देखो से फोर्स केमती पकेला फोर्स है कौन ना पानी को सब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कराए ओके स्विमिंग कंडीशन टाक आम कंसीडर करवा स्विमिंग ऑफ ए पर्सन जब स्विमिंग ऑफ ए पर्सन को आम कंसीडर करवा ताले पर्सन जो स्विम करुच्ची से वाटर को कौन करे बैकवर्ड डायरेक्शन ले रिपेल करे ओके ताको फॉरवर्ड डायरेक्शन ले मूवमेंट करिया कहले देखो तार एक्शन रहिला कौन ना फॉरवर्ड डायरेक्शन रे से एक्शन कौन करिवो ना फॉरवर्ड डायरेक्शन ले एक्शन करिया को चाहूची ताले ता रिएक्शन कौन दबो ना से जो वाटर अच्छी वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन ले मूवमेंट करिया को पड़िबो ता माने तार एक्शन फॉरवर्ड एक्शन पाई ताको कौन करिया को पड़िबो एटी रिएक्शन दबा को पड़िबो बैकवर्ड डायरेक्शन रे
Okay, so we can say a swimmer, okay, a swimmer always pushes the water in backward direction in order to swim in the pond or river. Okay, so we can say a man always, okay, push the water in backward direction in order to move or in order to swim in the river, in order to swim in the river. Okay, बुझीगला. So that is the example, another example of Newton's third law of motion जेटा हमें स्विमिंग केस रे यूज करूचे. आ गोटे केस भी नबा जेम तुम बूट केस नियो, जेतबे गोटे जंप करे गोटे पर्सन बूटमैन, ऑलवेज जदि हम गोटे पर्सन को बूट रु जंप करिया को देखिबा रिवर रे, तले से ऑलवेज कोन करे. गोटे थर्ड एग्जांपल लेबे इटी. सपोज ये मोर रिवर. ओके, रिवर रे हमें देखा कनसीडर करिया बूटमैन. ए बूटमैन ऑलवेज पुश द बूट. ओके, सपोज ये मोर गोटे बोट. ओके, ओके, ताले बोट रे कौन करबा, गोटे पर्सन को जते बळे रिवर को जंप करिया को देखिबा, जते गोटे पर्सन रिवर को जंप करे मगर तार जो आम ये रोचे ये मोर बोट. ओके, जते गोटे पर्सन तुम कौन कर ना रिवर को जंप कर. ओके, सपोज जो पर्सन टा मोर मूवमेंट करुचे रिवर को जंप करुची, से कौन करे ना बूट को कौन करे ना रिवर्स डायरेक्शन रे रिपेल कर दिए. बूट को कौन करे ना रिवर्स डायरेक्शन रे रिपेल कर दिए. ओके, सो कैन से बोटमैन ऑलवेज पुश द बोट in backward direction when he jumps into the river. ओके, जो बोटमैन तुमको रिवर को जंप करे, से ऑलवेज कौन करे ना से बोट को कौन करे ना रिवर्स डायरेक्शन रे ये करे. तने ये नहीं पारिबा जदि हम ये एक्शन देले कौन ना ये मोर एक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन रे, रिएक्शन कौन पाइल ना बोटा मोर रिवर्स डायरेक्शन ले मूवमेंट करुची. ओके, पर्सन एक्शन कौन आसिला से फॉरवर्ड डायरेक्शन ले मूवमेंट करुची. एक्शन आम देले कौन ना पर्सन रो केस रे एटा न्यू एक्शन, पर्सन फॉरवर्ड डायरेक्शन ले जंप करुची, बोट कौन आसुची ना रिवर्स डायरेक्शन ले मूवमेंट कला. ओके, बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन जम्प्स इनटू द रिवर. बुझीगला ना बुझीगलानी. आउरी केसेस तुम नहीं पारिबो कौन ना जो रॉकेट लॉन्चिंग आम कनसीडर करुचे. एग्जांपल 4 आउट नहीं पारिबी. माने कर रॉकेट लॉन्चिंग देखि दिबो. रॉकेट लॉन्च
ओके सपोज यहाँ गोटे रॉकेट को आम कंसीडर करवा ताले रॉकेट ऑलवेज कौन करे ना ये जो फायर यहाँ कौन अच्छी ना फायर जो निआटा तले जलुए मोमेंट कौन आसे ना अपवर्ड डायरेक्शन रे ओके सो व्हेन देयर इज ए लॉन्च ऑफ रॉकेट टेक्स प्लेस ओके जो आम रॉकेट लॉन्च को कंसीडर करुचे जो गैस रो कंबुशन आसे ओके दैट इज द फायर कहाँ आसे फायर बिकॉज ऑफ fire due to combustion of gases combustion of gas ओके देख ताले एक्शन ये कौन आसला ना फायर एक्शन दौचे बाटी फायर उपर जो आम गैस टाक बर्निंग कराऊे ताले रॉकेट जाके कौन आसूची ना अपवर्ड डायरेक्शन ले ओके देखिए फायर जो बर्न होची से रिवर्स डायरेक्शन ले बहुत स्पीड रे बर्न होता है से रॉकेट कौ डायरेक्शन ले आसे ना अपवर्ड डायरेक्शन ले आसे ओके सो वी कैन से यू कैन राइट द गैस प्रोड्यूसेस इन द combustion of the chamber of the rocket okay rocket engine push the rocket to move in a upward direction okay so eta tame represent kari paribo represent ame ei type ro kari pariba kon likhi paribo na gases produce the fire produced due to combustion of gases of the engine combustion of the gases push the engine of the rocket in to move in upward direction that is also an example of Newton's third law of motion बुझेगा सो दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तुम कार केस भी नहीं पारिबो कार केस रे हम ऑलरेडी कहि सारी छे जे फ्रिक्शन फोर्स टा मोर बैकवर्ड डायरेक्शन ले आसे एक्शन फोर्स टा मोर जेटा में कहजा फ्रिक्शन टा दैट इज एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स कोन आसे ना कार टा फॉरवर्ड डायरेक्शन ले मूवमेंट करे सो दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आई थिंक ऑल ऑफ यू should get the idea about what the Newton's third law of motion says okay so in next class we will discuss about the various applications of Newton's third law of motion ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बेस करी कि न्यूटन मोशन को बेस करी कि आम किसी एग्जांपल्स गुड़ाक ड्र करवा नेक्स्ट क्लास रे जो एग्जांपल रे आम देखा जे हाउ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन केम इनटू एक्शन ओके थैंक यू